Good morning. In this video, you will learn about program preliminaries. What is program preliminaries? It includes all the basic terms which are required in programming of a problem in any computer language. First one is program, source program, object program, compiler, assembler, and then programming language. These are the basic terms which are included in program preliminaries. Let us see these terms one by one. What is program? Program क्या है? It is a sequenced set of instructions written in a programming language to solve a particular problem. किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सीक्वेंस में जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको प्रोग्राम बोलते हैं. नेक्स्ट इज सोर्स प्रोग्राम. यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे फोर्ट्रान, पास्कल, C++, जावा, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उस प्रोग्राम को बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम. नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. अब जो कंप्यूटर है वो तो सिर्फ बाइनरी कोड्स को ही समझता है, दैट कैन नॉट अंडरस्टैंड द सोर्स प्रोग्राम. सो वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस सोर्स प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज, and program written in machine level language is known as object program. 0 और 1 कोड्स की फॉर्म में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. नेक्स्ट इज कंपाइलर. Compiler is a system software which is used to convert the source program into object program. It is also known as language processor because it converts the program written in high level language. HLL stands for high level language. जो भी लैंग्वेजेज हैं जो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेजेज हैं जिनमें प्रोग्राम लिख सकते हैं, these are known as high level language. For example, C++, Java, Pascal, Fortran, all these are high level language. इनमें जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम, और उसको कन्वर्ट किया जाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, बिकॉज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन कोड्स. दैट प्रोग्राम इज नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. सो वी नीड अ system software that perform this task, that is conversion from source program into the object program. हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा होता है उसको मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज होता है दैट इज़ नोन एज कंपाइलर. नेक्स्ट इज असेंबलर. व्हाट इज़ असेंबलर? असेंबलर इज ऑल्सो सिमिलर टू कंपाइलर. जो काम कंपाइलर करता है वही काम असेंबलर करता है, असेंबलर भी करता है. तो कंपाइलर का काम क्या था? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहा था. असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ऑफ 2 टाइप्स, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. High level language, for example, C++, Fortran, Pascal, etc. All these are the examples of high level language, and we mostly write programs in high level language. Low level language is further divided into 2 parts. First is machine language and another is assembly language. Machine language, the computer understands only the machine language. And what is assembly language and these languages? Let us learn these languages one by one. First one is machine language. Machine language is in the form of 0 and 1. As we all know that computer understands only binary codes, that is 0 and 1. But it is very difficult language to learn, difficult to write program in this language. प्रोग्रामर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर. अगर हम इसमें लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट इसी में प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, तो हमें जो कंप्यूटर है उसके इंटरनल फंक्शनिंग के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखा जा सकता है. बट एज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट
to learn and also very difficult to write program in this language. So mostly program is not written in this language, and it is mostly written in high level language, and then that program written in high level language is converted into machine language with the help of compiler. नेक्स्ट इज़ असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ निमोनिक्स. इसमें निमोनिक्स यूज होते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स यूज होते हैं. अल्फ़ाबेट्स भी यूज होते हैं और न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें जैसे एडिशन की जगह ऐड, सब्ट्रैक्शन की जगह सब, इस तरीके के ये सिम्बल्स यूज होते हैं. एंड दीज आर वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू रिमेंबर एंड राइट प्रोग्राम इन इट. इसको याद रखना भी इजी है और इसमें प्रोग्राम लिखना भी इजी है. डिफरेंट फॉर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर्स. लेकिन ये डिफरेंट मॉडल्स के लिए डिफरेंट होगी ये लैंग्वेज. तो सोर्स प्रोग्राम अगर असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो असेंबलर भी हर एक कंप्यूटर के लिए अलग होगा, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है डिफरेंट है अलग अलग मॉडल्स के लिए. तो एक ही असेंबलर को आप हर एक कंप्यूटर में यूज़ नहीं कर सकते. हर एक मॉडल के लिए अलग असेंबलर यूज़ करना पड़ेगा, जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा. नेक्स्ट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज. इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज. जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो स्टेटमेंट्स की फॉर्म में होते हैं, एंड इट रिजेंबल्स टू आवर ऑर्डिनरी इंग्लिश स्टेटमेंट्स. जो रूटीन की इंग्लिश स्टेटमेंट्स हैं उनसे ही रिजेंबल करते हैं. तो ये बहुत ही ईजी है, ईजी टू लर्न एंड यूज़. इसको याद करना भी ईजी है और यूज़ करना भी ईजी है. तो मोस्टली जो प्रोग्राम्स हैं वो पहले हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, फिर कंपाइलर की हेल्प से उनको मशीन कोड्स में चेंज किया जाता है.